मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बीआरएस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी और उन्होंने कहा है कि बीआरएस को किसी दल से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि खबरों में बने रहने के लिए कुछ लोग सनसनीखेज बयान दे रहे हैं। तलसानी ने भरोसा जताया है कि वह 2018 के मुकाबले ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बीआरएस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी और उन्होंने कहा है कि बीआरएस को किसी दल से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि खबरों में बने रहने के लिए कुछ लोग सनसनीखेज बयान दे रहे हैं। तलसानी ने भरोसा जताया है कि वह 2018 के मुकाबले ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। आईटी मंत्री केटी रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना राज्य सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका में उल्लेखनीय परिणाम हासिल किया है। रामाराव ने बुधवार को यहां अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIEF के हैदराबाद चैप्टर के उद्घाटन में I can't say the same thing about your travel choices. You started with Jamshedpur, Ranchi, and then you're off to Bhopal tonight. All terrible choices, I can tell you that. Matthew, yeah, we have you to blame for that. And he's actually gladly taking responsibility. Thank you for that. But Nishant, I loved what you said. You started off saying this is a very special place. It is indeed. I thought you would talk about how you met your wife here. You didn't. Is she here in the audience, by the way? You're in for trouble if she is. He actually apparently met his wife here too. So congratulations on that as well. But like I was saying, it's special because of multiple reasons. This is a city where when I said biology meets technology, I wasn't kidding. Or I wasn't just doing it for the sake of it. I don't know how many of you know this, but we are home to 1/3 of global vaccine production, this city alone. We literally produce 9 billion. We produce 9 billion doses of vaccine from here, and come next year, it will be 14 billion doses. So we'll literally be producing 50% of global vaccines from this city. We are also home to some of the largest American enterprises here. In fact, Amazon's world's largest campus is right here in this city. And like Rebecca said, this is one of the best kept secrets about India, because a lot of these, lot of overseas investors who are looking at India typically end up in Delhi, then go to Bombay. Some of them even end up in Bangalore, and then when they eventually come to Hyderabad, they're pleasantly surprised, and then their decision is made. That's how it has been working over the last 8 years. In fact, not only Amazon's world's largest campus, some of the largest technology companies have their second largest bases outside of the US right here in this city. In fact, the marquee list includes Apple, Google, Meta, Microsoft, of course, which has been here for a while, Uber, my friend Anand Ramamurthy is here, Micron, Salesforce, ServiceNow, Qualcomm, Medtronic, Novartis, the list goes on, it's a long list. All of these large marquee companies have done tremendously well here in India, and particularly in Hyderabad. In fact, we have more than 500 American enterprises which have been doing rather well. In fact, just this morning, I met the entire leadership team of a company called State Street. Now, State Street, for those of you who are from the US would know very well, is one of the large Fortune 500 companies, a very large behemoth in banking and financial services. They started with 0 employees in 2018. Today they have 9,000 people working out of Hyderabad. That's how quickly they've ramped up. Not a day passes by without me or Jayesh meeting some large or small or medium American enterprise who's wanting to make Telangana and Hyderabad their gateway into India. Let me also add, while we are at it, since Rebecca is here, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सीएम केसीआर को एक और पत्र लिखा है। उन्होंने तेलंगाना में हवाई अड्डों के स्थापना में सहयोग करने का अनुरोध किया है। किशन रेड्डी ने केसीआर को आदिलाबाद, जकारनपल्ली और वारंगल हवाई अड्डों के निर्माण के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी, जिनके पास सभी परमिट हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सीएम केसीआर को एक और पत्र लिखा है। उन्होंने तेलंगाना में हवाई अड्डों की स्थापना में सहयोग करने का अनुरोध किया है। किशन रेड्डी ने केसीआर को आदिलाबाद, जकारनपल्ली और वारंगल हवाई अड्डों के निर्माण के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी, जिनके पास सभी परमिट हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय कुमार ने इस बात की आलोचना की है कि केसीआर के परिवार के लिए राज्य के कॉर्पोरेट कॉलेज ATM की तरह हो गए हैं। केसीआर का परिवार कॉर्पोरेट कॉलेजों की देखरेख करता था और कहा है कि वे नाराज है।
उन्होंने कहा है कि वे छात्रों को परेशान कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर फीस वसूल रहे हैं। उन्होंने मेडचल जिला भाजयुमो जिलाध्यक्ष पवन से मुलाकात की, जो हाल ही में पुलिस के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बोडुप्पल के एपेक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में पूछताछ की बंडी संजय ने चेतावनी दी है कि बीजेपी के सत्ता में आते ही हम चैतन्य समेत कारपोरेट कॉलेजों का अंत देखेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक कारपोरेट कॉलेजों पर लगाम नहीं लगेगी तब तक उनका संघर्ष नहीं रुकेगा। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सिर्फ 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी गरीब छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजना लाती है तो बीआरएस सरकार ने करोड़ों रुपए के बकाया रखा है। उन्होंने कहा कि आरोग्य श्री योजना की सीमा को 5 लाख तक बढ़ाया जाएगा ताकि हर गरीब व्यक्ति को कारपोरेट स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सके। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सिर्फ 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी गरीब छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजना लाती है तो बीआरएस सरकार ने करोड़ों रुपए के बकाया रखा है। उन्होंने कहा कि आरोग्य श्री योजना की सीमा को 5 लाख तक बढ़ाया जाएगा ताकि हर गरीब व्यक्ति को कारपोरेट स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सके। पार्टी के राज्य मामलों के प्रभारी माणिक राव ठाकरे ने कहा है कि कांग्रेस का किसी से गठबंधन नहीं है, वे अकेले चुनाव में उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जैसी ताकतें गठबंधन के नाम पर जीतने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि कोमटि रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपनी टिप्पणी वापस ले ली है, सभी नेता एकजुट हैं। से समझौता कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा, वही बात वेंकट रेड्डी जी ने एयरपोर्ट पे दोहराई है और मैं समझता हूँ अकेले के बलबूते पे सत्ता में आ रही है, इसलिए कुछ लोग उसको और हवा देने को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी जैसी पार्टी उसको तूल दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ प्रचार में उतरी है। उस तरीके की यात्रा चल रही है। हाथ से हाथ जोड़ो जो राहुल जी का संदेश है वो घर घर तक पहुंचाने की कोशिश पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से चल रही है। रेवंत रेड्डी जी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा लगातार 7वां दिन आज है, बड़ी अच्छी तरीके से रिस्पांस उसको मिल रहा है। और हमारे उत्तम कुमार जी जो एमपी है, वेंकट रेड्डी जी जो एमपी है और सीएलपी लीडर जो भट्टी जी है, उन्होंने जो 28 तारीख 1 मार्च और 2 मार्च को यात्रा वो भी। किसान कांग्रेस कार्य समूह की बैठक गांधी भवन में आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अन्वेश रेड्डी ने की है और इस समीक्षा में एआईसीसी के राज्य मामलों के प्रभारी माणिक राव ठाकरे और किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोंदड्डा रेड्डी ने भाग लिया है। सीएम केसीआर के साथ सिद्दीपेट जिले का दौरा करेंगे। सीएम केसीआर के जन्मदिन के मौके पर सिकंदराबाद के वैसे डिग्री कॉलेज में दलित ईसाई आध्यात्मिक सभा का आयोजन किया गया और सभा की मुख्य अतिथि एमएलसी कविता थी। कविता ने कहा कि पिछले 8 सालों में राज्य में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। सीएम केसीआर के जन्मदिन के मौके पर सिकंदराबाद के वैसे डिग्री कॉलेज में दलित ईसाई आध्यात्मिक सभा का आयोजन किया गया और सभा की मुख्य अतिथि एमएलसी कविता थी। कविता ने कहा कि पिछले 8 सालों में राज्य में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। संगारेड्डी जिले में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री दामोदर राज नरसिम्हा ने के भाई रामचंद्र कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। संगारेड्डी जिले में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री दामोदर राज नरसिम्हा ने के भाई रामचंद्र
कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। రామచంద్ర రాజనరసింహ గారు గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులను శాలువాపై సన్మానించడం కోరుతున్నాం. कांग्रेस पार्टी में बेगम बाजार आर्य वैश्य भवन के सदस्यों ने शहर के बेगम बाजार स्थित आंध्रा सरस्वती गर्ल्स स्कूल को 15 कंप्यूटर निःशुल्क दान दिया है। कन्या विद्या समिति के अध्यक्ष गुब्बा नागेंद्र राव ने कहा है कि दानदाताओं के सहयोग से इस स्कूल में पढ़ने वाली गरीब छात्राओं को यूनिफॉर्म और किताबें मुफ्त मुहैया कराई जाती हैं। शुरुआत में एक सहायता प्राप्त स्कूल के रूप में शुरू हुआ यह स्कूल लड़कियों की पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। उन्होंने कामना की कि छात्र छात्राएं अच्छे से पढ़ाई करें और ऊंचाइयों को छुएं। सागर रेड्डी जिले के निजामपेट मंडल के दरगाह टांडा में एक ईंट भट्टे में काम करने वाली उड़ीसा की युवतियों ने उड़ीसा के अधिकारियों से शिकायत की है कि ईंट भट्टा मालिक ने उन्हें परेशान कर रहे हैं। नतीजतन उड़ीसा के अधिकारियों ने सागर रेड्डी के जिला कलेक्टर डॉक्टर सारथ और एसपी रमनाश कुमार से शिकायत की है। उनकी शिकायत के अनुसार जिला कलेक्टर ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों ने प्रभावित युवतियों को सागर रेड्डी के सखी केंद्र में स्थानांतरित कर दिया। आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी और इसी के साथ नारायणखेड़ पुलिस ईंट पत्थर मालिकों से पूछताछ कर रही है। कुकटपल्ली की क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। XCSPL नाम की एक कंपनी ने करोड़ों रुपए की चोरी की है। 1 लाख के निवेश से 3 महीने में 4 लाख का मुनाफा और पैसे लिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति से 1 लाख से 10 लाख तक का 4 गुना मुनाफा वसूला गया है। कुकटपल्ली की क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। XCSPL नाम की एक कंपनी ने करोड़ों रुपए की चोरी की है। 1 लाख के निवेश से 3 महीने में 4 लाख का मुनाफा और पैसे लिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति से 1 लाख से 10 लाख तक का 4 गुना मुनाफा वसूला गया है। कई भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि हैदराबाद के आसपास के इलाकों में 2 दशकों में 13 से अधिक बार भूकंप आ चुके हैं। तुर्की में भूकंपों की एक श्रृंखला और उत्तर भारत में आने वाले भूकंपों ने शहर की स्थिति का विश्लेषण किया है। शहर से 35-50 किलोमीटर की दूरी पर भूवैज्ञानिक स्थितियों के बारे में विशेष उपकरण द्वारा एकत्र की गई जानकारी का विश्लेषण करने पर पता चला है कि शहर में भी भूकंप आते थे और ये पता चला था कि भूकंप के केंद्र कुछ दूरी पर जमा हुए थे, पृथ्वी की सतह से 28 किलोमीटर, जबकि सामान्य भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतों में बने दबाव के कारण होते हैं। NGRI के नवीनतम विश्लेषण से पता चला है कि पिछले 20 वर्षों में भूकंपीय तरंगें 13 से अधिक बार जारी की गई हैं और विशेष रूप से विकाराबाद, जुबली हिल्स घाट के इब्राहिमपट्टनम में हल्के झटके महसूस किए गए। शहर के चारों ओर 35 से 65 किलोमीटर की दूरी पर एकत्र किए गए भूकंपीय आंकड़ों के आधार पर यह पुष्टि हुई कि भूकंप आए थे। वर्तमान में तेजी से विकसित हो रहे शहर के बारे में माना जाता है कि इसमें लगभग 3 अरब साल पहले बने आर्कियन क्रस्ट की विशेषताएं हैं। NGRI के शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि 4 परतों में फैले हैदराबाद डेक्कन ज्वालामुखी काल के सबूत हैं, लेकिन यह पता चला है कि नीचे की परतें ऊपर की तुलना में सघन हैं। जुबली हिल्स, राजापेट और इब्राहिमपट्टनम के बीच के क्षेत्र में ऊपरी परत का मोटाई 5-10 किलोमीटर से अधिक है। मध्य परत की मोटाई इब्राहिमपट्टनम से महबूबनगर तक के क्षेत्र में 4 से 7 किलोमीटर है और तीसरी परत विकाराबाद से महबूबनगर, जुबली हिल्स से घटकेसर तक 12.5 किलोमीटर मोटी है। इब्राहिमपट्टनम में अंतिम परत की मोटाई 8.7 किलोमीटर है और ऐसा कहा जाता है कि हटनूर में पृथ्वी की परतें 20.6 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। 1843, 1876, 1882, 1993 में आए भूकंपों का मूल्यांकन किया गया और कम तीव्रता का होना निर्धारित किया गया है। NGRI के शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि 2022 में गचिबौली क्षेत्र में आए भूकंप की तीव्रता 3.3-4.8 के बीच थी और इन परिणामों के आधार पर शहर के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड युवा क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने के इरादे से आगे आया है। आयोजकों ने कहा कि कोचिंग बियॉन्ड के सहयोग से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के 20 जिला के युवा
एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और कोचिंग बियॉन्ड के संस्थापक पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड युवा क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने के इरादे से आगे आया है। आयोजकों ने कहा है कि कोचिंग बियॉन्ड के सहयोग से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के 20 जिला के युवा एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और कोचिंग बियॉन्ड के संस्थापक पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। Then who are we to say anything? They will take the decision. Lower down to Yeah. What is that? side. Today event. What happened? I don't know. Chetan Sharma I don't know anything about that. I have not even heard or read. And authorities are there in place to handle it. I have no clue whatsoever. Great start. Great start. They will not relax. Start. They'll want to relax. Start. To still harder. वनडे T20 में नंबर 1 टीम इंडिया ने अब टेस्ट में भी टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। आईसीसी द्वारा घोषित टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम नंबर 1 पर बन गई है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट जीतकर रोहित शर्मा की सेना ने 115 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। कप्तान रोहित शर्मा ने एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की क्योंकि टीम इंडिया को टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। वह तीनों प्रारूपों में आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले कप्तान बने और रोहित शर्मा ने एक साथ 3 प्रारूपों में नंबर 1 स्थान प्राप्त करने के लिए क्रिकेट के इतिहास में पहले कप्तान के रूप में इतिहास रचा है।